हम सब खुदा की हज़ूरी में नवाज़ाए करें। आज उस वक्त है खुदा की हज़ूरी में झुकने का और अपने गुनाहों का इकरार करने का, खुदा से कहने का कि खुदा मुझसे खताएं हुई, मुझसे गलती हुई, और आज मैं पूरे दिल के साथ तेरी हज़ूरी में आकर ईमान के साथ झुकता हूँ और अपनी बदियों को अपनी खताओं तेरी हज़ूरी में इकरार करता हूँ। मुबारक है हर वो शख्स जिसकी खताओं को खुदा इस सामने नहीं लाता। हम सब आज खुदा की हज़ूरी में आकर बड़े ईमान के साथ इस बात का इकरार करते हैं कि जब हम खुदा की हज़ूरी में पूरे दिल से रूह सच्चाई के साथ उसकी हज़ूरी में आकर उसके रहम को, उसके फज़ल को अपनी जिंदगी में मांगते हैं, तो खुदा हमें जवाब देता है। आए इस बात का इकरार करें कि खुदा आज तेरा फज़ल मेरी जिंदगी में नजर आए, क्योंकि खुदा हमारे गुनाहों को, हमारी खताओं को माफ करने की कुदरत रखता है। खुदा की हज़ूरी में मदद सही करके इस नाम को जवाब देते हैं। ये साल सब खुदा की हज़ूरी का मसला करते हैं। हम सब कहेंगे फज़ल तेरा बख्श, गुनाह सब मेरे, मांगो फज़ल रहम कर, तू है होते मेरे। आज का दिन जो खुदा ने हम सब की जिंदगी में बख्शा है, तो हम आज सुने कि हम आज खुदा की हज़ूरी में आकर अपनी तमाम खताओं का, अपनी तमाम गलतियों का इकरार करते हैं कि खुदा मुझसे जो खताएं हुई हैं, मुझसे जो गलती हुई, आज मैं तेरी हज़ूरी में झुककर पूरे दिल से तेरे फज़ल को अपनी जिंदगी में मांगता हूँ। तो मैं इस बात पर भरोसा रखता हूँ कि तू मेरी दुआ को सुनता है और मुझे जवाब देता है। बख्श गुनाह
اپنا کلوتا بیٹا بخش دیا ہے جو کوئی مان لے گی
سے پشم تک اپنے رسولوں کی بلندی کے باپ پر رنگ لگا دیا ہے. بہت ساری جانوں نے توبہ کی ہے کہ بہت ساری جانوں باپ تیرے قریب آ گئی ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. آج بھی باپ تیرے محبت سے تیرے خادم ہے, تیرے باپ عالم ہے, تیری باپ ستائش یا تعریف کرتے ہیں, تیرے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں. اس اچھی محبت کے لیے بڑا شکر کرتے ہیں. زمین پر کوئی ایسا نہیں, بے شک لکھا پاک کلام جو خواہ آسمانی خواہ زمینی خواہ زمین کے نیچے والے بھی سب کا گھٹنا جھک جائے گا. بہت ساری غیر قوموں امان لے آئی ہے. یسوع جی یہ آخرت ایسی ہے, بے شک تو ایسے جب آئے گا کہ جلالی تخت تیرے سب فرشتے سمان سے لکھے تیرے نال آئیں گے. کہ جدو عدالت ہوئے گی تو لکھا کچھ دائیں بائیں کھڑے کیے جائیں گے. جڑے دائیں کھڑے کیتے جان دے ان کبھی آئے میرے باپ کے کو مانگ لو امراض کو جنی بنائے عالم کو تمہارے لیے تیار کی ہے. اس پیار کے لیے بڑا شکر کرتے ہیں. کسی کا کوئی نبی ایسا نہیں, کسی کا کوئی ایسا خداوند نہیں. ہمارا یسوع مسیح ایسا ہے جس کا نام لکھا گیا یعنی خداوند. یعنی خداوند ایسا ہے جن کا باپ رفا ہے, ہر طرح باپ رفا ہے. گنہگاروں کو آواز مارتا ہے, اے گنہگاروں سب میرے پاس آ جاؤ, اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے لوگوں سب میرے پاس آ جاؤ. بے شک ہم ہندوؤں سے سکھوں سے پیدا ہوئے ہیں, تو اپنا پیار دکھایا ہے, اپنی مشان بخشی ہے, اپنا رفان بخشا ہے. اس پیار کے لیے شکر کرتے ہیں. تیرا کلام جو باپ کا دنیا جہان سے پھیل رہا ہے, تیری محبت سے تیرا شکر کرتے ہیں. تیرا کلام سنانے والا آج تیرا خدا جو کلام سنائے ہماری سب کی زندگی کے لیے نجات کا انتظام ہو. جنہوں نے توبہ نہیں کی کلام سے توبہ کریں. اس اچھی محبت کے لیے شکر کرتے ہیں. بیٹے اپنے نبی کو اس اچھے پیار سے واپس پائے. یہ بات کہنا بخشا ہے, دنیا بخشی ہے, لوگ بخشے ہیں, یہ تیری طرف سے ملے ہوئے ہیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. بہت سارا بات چل کر جو بات پر آنے والا وقت ہے, روزے کے دن چل رہے ہیں, کہ بہت سارے پیار سے تو معاف کر کے بہت سارے گنہگاروں کو معاف کر دینا ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں. روزے قبول کرنے والے خداوند یسوع مسیح تو جانتا ہے تاکہ ہمارا فدیہ دے کے اپنے خون سے ہمیں خرید لیا ہے, کہ نیک پال بیٹے بنا لیا ہے. بے شک اپنے خادموں کرنا ہے. ہمارے بھائی جو زمین پر بہت سارا پہلا کام کر رہے ہیں, بہت سارا کلام سنا رہے ہیں, ان کو بھائی بھی بنا لیا ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں. اے میں سب گانے والیاں ستائش کرنے والیاں بیٹیاں بیٹے تیرے پسند ہے. ساز باز بات جدوں بجاتے ہیں کہ یہ تیری دیتی ہوئی عقل سے تیری محبت سے تیرا شکر کرتے ہیں. تیری شکر کرتا ہوں سب کو. اے جو کچھ منگیا سب کچھ تیرے مقدس تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین. اس کلام کو صورت سلال دیئے نہ کر پرواہ کس سے حلقی یسوع ہر دل بے شک خدا تو دلوں اور دلوں کے بے جانتا ہے. وہ ہماری ہر ایک بات کو ہر ایک سرد کو جانتا ہے. سب کا مزدش کریں گے نہ کر پرواہ کس سے حلقی یسوع خبر ہر پر نہیں.
اپنی ہتھیلی پہ غور رکھیے کتنے ہی مبارک لوگ ہیں آپ جو خدا پر امان رکھتے ہیں کہ خدا نے آپ لوگوں کی صورت اپنی ہتھیلی پہ غور رکھتی ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کوئی یہ زمانے مبارکہ سے یہ انسان صادر نہیں کر سکا کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پہ غور رکھی ہے ایک ہی نام ہے اور نام ہے یسوع مسیح جس نے دعویٰ کیا ہے میں دنیا کے آخر تیرے ساتھ ہوں اور آج جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم بھی اس کے نام کی شکر گزاری کرتے بڑی دلیری کے ساتھ اس کے کاموں کو دنیا تک پہنچاتے ہیں اور اس کے نام کی مدد سنائی کرتے ہیں ہم سب خدا کی پرستی میں اس کی حمد و ثنا میں اسی طرح بڑھتے ہوئے نعرہ ہاللویا ہاللویا گاتا رواں صبح و شام ہمیں صبح و شام خدا کے نام کی مدد سنائی اور اس کے نام کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہی شکر گزاری حمد و ثنا پرستی اور تسبیح کے لوائے ہم سب خدا کی پرستی کرتے ہیں اور اس کے نام کی ضرورت شکر
हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद कीजिए और सभी आज मुत्तफिक होकर खुदा के हजूर में झुकेंगे और उसको शुक्रगुजार हर वक्त के लिए, हर लम्हात के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। मुबारक अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदावंद, पतरस पालूस रसूल के खुदावंद, दिल से और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं जो आज आपने हमारी जिंदगी में ये दिन बख्शा, इसके लिए शुक्रगुजार है। प्यारे खुदा, गुजरे अयाम में, दिनों में आपने हमारी निगाहबानी फाज की है। सो प्यारे खुदा, आज भी हमारी फाज करना, निगाहबानी करना। जब से सुबह से हम प्यारे खुदा उठे हैं तब से आपने हमारी निगाहबानी फाज की है और प्यारे खुदावंद अब भी हमारी निगाहबानी फाज करना। मेहरबान खुदावंद, शुरू से लेकर आखिर तक प्यारे खुदावंद तुम्हारे साथ रहना, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा यहाँ तख्त लगा हुआ है खुदावंद। प्यारे खुदावंद, पाक कलाम मुकद्दस में लिखा है गुनाहगारों से प्यार और गुनाह से आप नफरत करते हैं। प्यारे खुदावंद, तेरे हुजूर जो आए हैं प्यारे खुदावंद, तू प्यारे खुदावंद हम गुनाहगारों के लिए आपने स्लीपर जान दी प्यारे खुदावंद, अपना पाक लहू बहाया और हमें गुनाहों से आजाद किया प्यारे खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी सारी दी हुई नेमतों के लिए, बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जो आपने हमें सांसें दी हुई हैं इनके लिए भी तेरे शुक्रगुजार है। और प्यारे खुदावंद, सादोवाज के लिए, क्वार के लिए, क्वार के हर एक मेंबर के लिए, भाई इमरान के लिए जो क्वार का लीडर है, भाई इमरान परवेज के लिए और भाई प्यारे खुदा सुनील के लिए जो मीटिंग को प्यारे खुदा लीड कर रहा है, इनके साथ हो और दूसरे जितने भी प्यारे खुदा क्वार के मेंबर सबके साथ हो, बड़ी बरकत दे। प्यारे खुदावंद, जब रूह और सच्चाई के साथ परस्तिश करते हैं तो तेरा प्यारे खुदा रूह कुद्दस जो बच करता है। और प्यारे खुदा, जितने बहन भाई तेरे हुजूर में सरनगू है, सजदा रेज़ है प्यारे खुदावंद, इनकी इल्तिजाओं को, दरख्वास्तों को, मुनाजातों को तू जानता है खुदावंद। प्यारे खुदा, आज तेरे घर से कोई भी खाली हाथ ना लौटे। प्यारे खुदा, वे आने का इरादा रखते हैं, प्यारे खुदा मरीज ने रोका हुआ है प्यारे खुदावंद, किसी वजह से, किसी मजबूरी से, किसी मुश्किल से, किसी बीमारी की हालत में, तो खुदा उनकी मजबूरियों को दूर कर, परेशानियों को दूर कर दे, सुस्ती काहिली उनकी जिंदगी में से दूर कर प्यारे खुदावंद, बीमारियों से आजाद कर प्यारे खुदावंद, ताकि तेरे लोग तेरे घर में आकर प्यारे खुदावंद तुझे सजदा कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके प्यारे खुदावंद। खुदा, मुल्क पाकिस्तान में जितने भी चर्चे हैं और प्यारे खुदा, जिन लोगों ने अपने घरों में इबादत के लिए जगह दे रखी है, खुदावंद को भी बड़ी बरकत दे। और बाहर के मुल्कों के लिए भी खास कर प्यारे खुदावंद तेरे आगे मेहनत करता हूँ, प्यारे खुदा वहाँ भी मौजूद होना और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदावंद। खुदा, रोज़ों के अय्याम में जितनी बेटियां, बेटे, बुजुर्ग, बहनें, भाई प्यारे खुदा रोज़े रखते हैं, जिस मकसद के लिए रखते हैं, प्यारे खुदा के मकसद को पूरा करना प्यारे खुदा, ताकि तेरे नाम में, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। प्यारे खुदा, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना प्यारे खुदा। और प्यारे खुदा, सारे प्रोग्राम प्यारे खुदा रोज़ों के अय्याम में जितने भी गुजरे प्यारे खुदा तेरी शुक्रगुजारी का गुजरते रहे। और प्यारे खुदावंद सबके साथ बड़ी बरकत दे। प्यारे खुदावंद, आज तेरे खादम के लिए प्यारे खुदावंद खास कर तेरे आगे मिन्नत करते हैं, जब तेरा बंदा तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाए, तो प्यारे खुदावंद जब तक तेरा बेटा कलाम करता रहे, तो प्यारे खुदावंद तब तक तेरा रूह कुद्दस उसकी मदद करता रहे। प्यारे खुदावंद बड़ी बरकत दे। भाई वीर के लिए, उसकी फैमिली के लिए प्यारे खुदा तेरे आगे मिन्नत करते हैं, बड़ी बरकत दे। तेरा बेटा तेरे को ईमानदारी के साथ और दयानतदारी के साथ तेरी खिदमत करता है प्यारे खुदावंद खुदा, और कलीसिया के लोगों के साथ प्यारे खुदावंद ताल्लुक रखता है, प्यार और मोहब्बत से जब वो तेरा बेटा पेश करता है, तो प्यारे खुदावंद तेरा रूह कुद्दस उसकी मदद करता रहे, प्यारे खुदा उसे कुव्वत और ताकत बख्शता रहे प्यारे खुदावंद खुदा। उन बुजुर्गों के लिए जो प्यारे खुदा बड़ी हिम्मत करके तेरे घर में आते हैं प्यारे खुदावंद खुदा, उनको बड़ी बरकत दे। घुटने टेकने यीशु तेरे नाम से जो मजबूत हो जाए और तेरे साथ प्यारे खुदा वो चलते रहे। जो नौजवान बेटे प्यारे खुदा अभी भी अपने घरों में प्यारे खुदावंद तैयारी कर रहे हैं,
تو پیارے خدا ان کو بھی عقل درائی اور فہم عطا کر تاکہ تیرے بیٹے اور بیٹے پیارے خدا وقت کی پابندی کر سکے پیارے خدا پر وقت پر تیرے گھر میں آئے اور تیرے نام کی عزت اور جلال دیتے رہے پیارے خدا تیرا شکر کرتے ہیں اور پیارے خدا سنڈے اسکول کے لیے بچوں کے لیے جو پیارے خدا تیرے روحانی اور دنیاوی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں ان کو بڑی برکت دے ان کے سالات کو بڑی برکت دے جو پیارے خدا اسکول کی میں ہے پیارے خدا ان بھائیوں کے لیے بزرگوں کے لیے تیری برکت کو مانگ لیتا ہوں ان کے ساتھ تیرے پاس سے خدا زن ہے خدا عقل درائی اور فہم عطا کر پیارے خدا پیارے خدا پورے چرچ میں پیارے خدا تیرے پاس سے جبریل خدا زن رہے تیرا نام ہی پیارے خدا عزت اور جلال پاتا رہے اور بڑی برکت دو پیارے خدا ایک بار پھر تیرے آگے منت کرتا ہوں خدا تو ہماری برکت سنا کے ترجمہ پر زمین پر آیا ہے تیرا تخت لگا ہوا ہے تو اپنا ہاتھ بڑھا اپنی بیٹیوں اور بیٹوں پر اپنا ہاتھ بڑھا میرے خدا ان کو میرے خدا برکت دی تاکہ تیرے نام کی عزت اور جلال ہوتا رہے اور بڑی برکت دو یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ دعائے عام کے صفحہ نمبر 47 سے عبادت کا آغاز ہے۔ اے قادر مطلق خدا تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مراد معلوم ہے، تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح قدس کے لہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھ اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ حکموں کا خلاصہ سنیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ پہلا حکم یہی اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا کوئی اور حکم نہیں۔ ان دو حکموں پر تمام ترین تربیہ کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اے خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم فرما اور اپنے حکموں کو ہمارے دلوں پر نقش کر، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میری زوائیات کی خاص دعا، لڑ کے تیسرے اتوار کی خاص دعا، خطر انجیل مقدس کا حصہ۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں، دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، ہم اپنے عاجز بندوں کی دلی آرزوؤں پر لحاظ رکھ اور سب دشمنوں سے ہماری حمایت کرنے کے لیے اپنی عظیم قدرت کا دینا ہاتھ بڑھا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ثواب کی بدولت خدا پاک خدا سب تمام کلیسیا پر، کوائر پر، جنہیں ہم تیرے نام سے برکت کی دعا دیتے ہیں، خدا تو ساتھ اپنی پناہ رکھ، یسوع کے نام میں آمین۔ ہماری آج صبح کی پہلی تلاوت عہد عتیق میں سے گنتی کی کتاب اس کا 22 باب 21 آیت سے 31 آیت تک پڑھا جائے گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، سو بلعام صبح کو اٹھا اور اپنی گدی پر ذہن رکھ کر مواب کے عمرہ کے ہمراہ چلا، اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکا اور خداوند کا فرشتہ اس سے مزاحمت کرنے کے لیے رستہ روک کر کھڑا ہو گیا، اور وہ تو اپنی گدی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 ملازم تھے، اور اس گدی میں خداوند کے فرشتہ کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے رستہ روک کے کھڑا ہے۔ تب گدی رستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی۔ سو بلعام نے گدی کو مارا تاکہ اسے رستہ پر لے آئے۔ تب خداوند کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کر کھڑا ہوا جو پاکستانوں کے بیچ سے ہو کر نکلتی تھی، اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھیں۔ گدی خداوند کے فرشتہ کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی، اور بلعام کا پاؤں دیوار سے پچکا دیا، سو اس نے پھر اسے مارا۔ تب خداوند کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں دہنی یا بائیں طرف مڑنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر جو گدی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا تو بلعام کو لیے ہوئے بیٹھ گئے۔ پھر تو بلعام جلا اٹھا اور اس نے گدی کو اپنی لاٹھی سے مارا،
तब खुदावंद ने गधी की जबान खोल दी और उसने बलाम से कहा कि मैंने तेरे साथ क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। बलाम ने गधी से कहा, इसलिए कि तूने मुझे चिढ़ाया। काश मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूं जिस पर तो अपनी सारी उम्र आज तक सवार होता आया है? क्या मैं तेरे साथ पहले कभी ऐसा करती थी? उसने कहा, नहीं। तब खुदावंद ने बलाम की आंखें खोली और उसने खुदावंद के फरिश्ता को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रुक के खड़ा है। सो उसने अपना सर झुका लिया और औंधा हो गया। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े जाने पर इसकी खास बरकत है। मेरे इज़्ज़ो हमारे आज की दूसरी तिलावत अहद जदीद में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का तिब्सियों के नाम 5वां बाब पहली आयत से 14 आयत तक पढ़ा जाएगा। जिंदा पाक कलाम में जो लिखा है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मान बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानत खुदा की नजर करके कुर्बान किया। जैसा कि मुकद्दस को मुनासिब है, तुम्हें हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो और ना बेशर्मी, बेहुदागोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हराम का या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजिल होता है। बस उन कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे, मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और आसबाजी और सच्चाई है। और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, और तारीकी के बेफाल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत भी किया करो, क्योंकि उनके वशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। और जिन चीजों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाओ और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुम पर चमकेगा। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर उसकी खास बरकत हो। मेरे इज़्ज़ो हमारी आज की आखिरी तिलावत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत उसका 6 बाब 5वीं आयत से। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत 6 बाब 5वीं आयत से। सब मिलकर कहें, क्या ये खुदावंद तेरा जलाल हो। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानी ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बिस्सारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे और बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानित ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो, प्यारे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी
जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हर रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे, तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे, तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा, आमीन। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े उसकी खास बरकत हो। मेरे जो नकायत की सूरत में अपने मसीह ईमान का इकरार करेंगे और सब मिलकर कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और जमीन सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है, एक खुदा यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, खुदा मुझसे पेशतर, अपने बाप से मालूम, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनून ही बल्कि मालूम, उसका बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीला से कुछ चीजें बनी, हम आदमियों के लिए हमारे निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और कुदस की कुदरत से मरियम से मुजस्सम हुआ, इंसान बना, पिलातुस के अहद में हमारे मसलूब भी हुआ, उसने दुख उठाया, दफन हुआ, तीसरे दिन पाक रिश्तों के महबूब जब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, बाप के दाएं बैठा है, जलाल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा, उसकी सल्तनत खत्म ना होगी। मैं ईमान रखता हूँ कुदस पर, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से शादी है, बाप और बेटे के साथ तसीम होती है, नबियों की ज़ुबानी बोला, पाक कहकर रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ, एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है, इकरार करता हूँ मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहां की हयात का इंतजार करता हूँ, आमीन। मेरी जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर संडे की पहली इबादत सुबह 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक और 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक बच्चों के लिए खूबसूरत संडे स्कूल का इनकाद किया जाता है, और दूसरी मेरी इबादत पौने 10 से लेकर 12 बजे तक होती है, और रोजों के अय्याम में हमारा चर्च सुबह शाम लगाया जाता है, और जुमे वाले दिन खास पाकशा की इबादत का इनकाद किया जाता है 3:30 से लेकर 6 बजे तक। तो मेरे जो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि कमिंग जो फ्राइडे होगा खुदा के खादम नदीम कैसर हमारे साथ होंगे। मेरी तमाम कलीसिया से गुजारिश है कि वक्त से पहले आए ताकि हम खुदा के मंसूब को वेलकम कर सकें, खुश आमदीद कह सकें। मेरी जो आज सुबह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है
कि पीपीसी चैनल हमारे साथ है भाई तारक शाकर, जो कि आज की इबादत को रिकॉर्ड करते हैं। और भी जो आप सब जानते हैं कि पीपीसी चैनल की जो खिदमात हैं ना सिर्फ ग्रीन टाउन में बल्कि दीगर लाकाजात में भी है, जैसे चुंगी अमृतसर और दीगर एरियाज में। तो मरीजों, आप सबसे गुजारिश है कि आप सब जरूर भाई तारक शाकर से जब कभी वो चंदा लेने आते हैं तामन करें, ताकि खुदा के कलाम को चैनल के जरिए से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। मरीजों, इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगे, खुदा की शुक्रगुजारी करें। मेजो, आज सुबह हम खास दुआ करेंगे अपने चर्च के पासबान के लिए, पादरी इमरान सैमुअल के लिए, उनकी फैमिली के लिए, कि जब खुदा का खादम रेगुलर हमारे पास आता है तो खुदा आने जाने में उसकी मदद करे, रहनुमाई फरमाए। मेजो कदस माप द राइट रेवरेंड नदीम कामरान बिशप ऑफ लाहौर के लिए दुआ करें कि खुदा अपने खादम को अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। मेजो, आज सुबह हज़रत जमायत के लिए दुआ करें कि हज़रत जमायत में जितने लोग बीमार हैं, परेशानियों में हैं, मुश्किलात में हैं, इवल स्पिरिट की कैद में हैं, खुदा उन्हें रहाई अता फरमाए। मेजो, खास दुआ करेंगे भाई शाहद के लिए, उनके खानदान के लिए, बेटे शसेब के लिए, कि खुदा अपने बंदा को जो एक बड़ी मुसीबत आई है उससे निजात अता फरमाए। मेजो, खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करें गुजरे महीने के लिए कि खुदा ने गुजरे महीने में हम सबको अपनी खास पनाह में रखा। मेजो, खुदा उनके हुजूर क्वायर के लिए, संडे स्कूल के लिए, स्कूल स्टाफ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, चर्च कमेटी के लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे। मेजो, खास दुआ करें रोजों के अय्याम में कि खुदा रोजों के अय्याम में हमें फजल दे ताकि हम रोजे रख सके। मेजो, खुदा उनके हुजूर उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है। खुदा उन सब पर रहम करे और उन सबको शिफा, तंदुरुस्ती, रहाई और मक़सी अता फरमाए। मेजो, चर्च बिल्डिंग के लिए, कंपाउंड के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। मेजो, शुक्र अदा करें उन तमाम लोगों के लिए जो सेंट मैरी चर्च के साथ निस्बत रखते, उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। मेरे दुआ करें कि खुदा हमारे वतन को तमाम तरह के हादसात से, बुरे अनासर से, बुरे लोगों से महफूज रखे, हुक्मरानों को अक्ल दिलाई फहम अता फरमाए। मेरी आज के कलाम के लिए दुआ करें कि आज का कलाम हम सब की जिंदगी में पूरा 100 गुना फल लाए। मेरे दुआ करें कि जब हम मसीह के खून और बदन में शामिल होते हैं तो खुदा हमें तैयारी की रूह अता फरमाए। कादिर मुतलक और असली खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की सुहानी सुबह के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में अता फरमाई। खुदा पाक, खुदा सुबह पादरी इमरान सैमुअल के लिए, पूरे खानदान के लिए बरकत चाहते हैं। तो कदस माप बिशप नदीम कामरान के, उनकी फैमिली के लिए दुआ दो कि अपनी खास पनाह में रख, अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। खुदा पाक, खुदा क्वायर पर, संडे स्कूल पर, स्कूल स्टाफ पर, सिक्योरिटी पर, चर्च कमेटी पर तेरी बरकत चाहते हैं। और दुआ को है कि खुदा तुम्हारे को अपनी खास पनाह में रख और जो जो खिदमत सौंपी है खुदा पाक, खुदा दयानतदारी से करे ताकत नाम की तासीम हो।
यसू ने हज़रत जुमायत के साथ हो। हज़रत जुमायत में जितने लोग बीमार हैं, परेशानियों में हैं, मुश्किलात में हैं, केवल स्पिरिट के अंदर है खुदा तुम सबको खुदा शिफा दे। जिनके पास औलाद की मिरास नहीं, उनको औलाद की मिरास अता फरमा। खुदा पाक खुदा सुख खास दुआ गो हैं भाई शाहद के खानदान के लिए। खुदा तो अपनी खास पनाह में रख जा। बड़ी मुसीबत में तेरे लोग हैं, अगर तू चाहे तो उनको रहाई दे सकता है। खुदा पाक खुदा तू रहम कर, भारी फसल दे, क्योंकि खुदा तू छुड़ाने और बचाने की कुदरत रखता है। खुदा पाक खुदा बाकी वक्त में हम सब की दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। हम सब अपने हाथों को बुलंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे और खूबसूरत कोर्स गाएंगे। बरकत दे यीशु बरकत दे, तू जोर हमारा है। और इसी कोर्स के दरमियान अपने आप को खुदा के जिंदा मौत पर दाई कलाम के लिए तैयार करेंगे और दुआ करेंगे कि आज का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी का वसीला ठहर जाए। दुआ करेंगे आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको, तमाम लोगों को रूहानी जिस्मानी बरकत से मालामाल करे। मेरी तो खास दुआ करें कि आज का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी का वसीला बन जाए। सब अपनी आंखें बंद करें, अपनी जिंदगी के लिए, खानदान के लिए, फैमिली के लिए कलाम मांगे और हाथों को बुलंद करें। Be
बात आज के इलाही कलाम के वसीला से खुदा पाक खुदा रूहानी जिस्मानी बरकत अता फरमाना तेरे मंसूब पर तेरे पाक रूह का मस्सा चाहते हैं कि जब वो कलाम करे तो वो कलाम तेरे लोगों के लिए पूरा 100 गुना फल लाए मसीह हमारे खुदा के वसीला से। मेरी जो वक्त है कि हम खुदा के जिंदा मौत पर लाए कलाम पर गौर करें, तो मैं खुदा के खादम इज्जत मां पादरी इमरान से अब्दुल को दावत दूंगा कि आए और खुदा का कलाम पेश करें। जोरदार क्लैपिंग करें। आइए एक दफा फिर से हम खुदावंद के जलाल के लिए भरपूर तारीफ करें। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं कि खुदा बाप ने हमें ये अयाम बख्शे हैं, रोजों के ये अयाम जो कि मेरे और आपके लिए और हम सब के लिए बरकत का बाइस हैं, ताकि हम रूहानी तौर पर अपनी जिंदगी को उसका जायजा ले सकें, हम रूहानी तौर पर जान सकें कि हम आज कहां पे खड़े हैं। आज ये रोजों के अयाम हमें फिर से ये याद दिलाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी आजिज़ी और किसाई के साथ गुजारनी है। हमें रोजों के अयाम में खास तौर पर अपनी खुद इनकारी के मुतालिक सोचना है कि क्या मैं और आप और हम सब इन रोजों के अयाम में अपनी खुद इनकारी करते हैं। और ये खुद इनकारी क्या है? ये खुद इनकारी ये है कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जो मामलात हैं उनसे हटकर क्या हम खुदा को वक्त देते हैं? क्या आज हम अपनी रूहानी बढ़ोतरी के लिए क्या खुदावंद के हुजूर में आते हैं? अगर ये तमाम सवालात मेरी और आपकी हम सब की जिंदगी में नहीं, तो फिर एक बड़ा सवालिया निशान है कि आज मैं रूहानी तौर पर खुदावंद के साथ कहां पे खड़ा हूं। आज हम रूहानी तौर पर खुदावंद के साथ कहां पे खड़े हैं, जबकि खुदावंद ने फिर से हमें ये रोजों के अयाम बख्शे हैं ताकि हम रूहानी कुव्वत पा सकें और इस रूहानी कुव्वत के साथ हम आने वाले बाकी अयाम में इस तरह से जिंदगी बसर करें कि हम बरकत का बाइस ठहरें। मसीह में मेरे अजीजों, आज सुबह इंजील मुकद्दस की तलावत जब की गई तो बहुत ये अहम हवाला है दुआए रवानी के हवाले से। ये आप सब ने बहुत दफा सुना भी है, पढ़ा भी है, और वो तमाम बातें और दुआ जो इसके अंदर बयान की गई है उसे आप पढ़ते भी हैं और बोलते भी हैं और सिखाते भी हैं और खुद आपने सीखी भी है। जब हम दुआ के हवाले से बात करते हैं तो ये जितनी बातें लिखी हैं इनको थोड़े से वक्त में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इख्तिसार के साथ इन तमाम बातों पर आज गौर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इन भेदों को जान सकें जो खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किए हैं। जब हम मुकद्दस मत्ती के मुताबिक लिखे गए जी उसके 6ठे बाब पर गौर करते हैं तो 3 अबवाब जो है हमें ये बताते हैं जिसमें हमें यीशु मसीह की शरीयत, खुदावंद यीशु मसीह ने जो आइन बयान किए हैं उनके मुताबिक बयान किया गया है, और उसको हम पहाड़ी वास भी कहते हैं। और ये यीशु मसीह का आइन जो हमें 3 अबवाब में मिलता है, सिर्फ ये 3 अबवाब ही नहीं बल्कि इंजील मुकद्दस के तमाम हिस्से, इंजील मुकद्दस की तमाम वो बातें जिनमें खुदावंद यीशु मसीह ने वो मोती बखेरे हुए हैं वो हमें जगह पर जगह मिलते हैं। और ये मेरे लिए और आप सब के लिए और कुल कायनात के लिए वो अजीम मोती हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में जब अपनाते हैं तो हम बरकत पाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत अहम है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के आइन को समझ सकें, जान सकें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो खुद ये अल्फाज अपनी जुबान मुबारक से अदा किए वो हमारे लिए कितने अहम हैं। और अगर आज हम खुदावंद यीशु मसीह के अदा करदा अल्फाज को अपनी जिंदगी में नहीं समझ पाते, उसके भेद को नहीं समझ पाते, तो फिर
हमें खुदावंद के हुजूर में झुकने की जरूरत है, उसे मांगने की जरूरत है कि खुदावंद हमारी मदद करे कि हम खुदा के कलाम की बातों को जान सकें, हम पहचान सकें कि वो हमसे किस तौर पर बयान करता है। और ये तभी मुमकिन है जब हम उसके कदमों में बैठते हैं, उसके पास आते हैं और हम उससे दुआ मांगते हैं। जब हम दुआ की बात करते हैं तो दुआ जो है वो खुदा के साथ क्या है, एक राब्ता, खुदा के साथ क्या है, बातचीत करना, खुदा के साथ गुफ्तगू करना, मुकालमा करना। लेकिन क्या हमने गौर किया है कि हमारी दुआ कैसी है? जब हम खुदावंद के हुजूर में आते हैं तो हम कैसे दुआ करते हैं? आम तौर पर हम इस तौर पर दुआ करते हैं कि खुदावंद हम तेरा शुक्रगुजार आते हैं, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये सब कुछ दिया, और फिर उसके बाद एक अपनी मुकम्मल तफसील खुदावंद के सामने पेश करते हैं और फिर कहते हैं आमीन। और फिर हमारी दुआ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो क्या हमने इस दुआ के अंदर खुदा के साथ बातचीत की? जब मैं आपके साथ बात करता हूं, आप मेरी सुनते हैं, मैं आपकी सुनता हूं, तो हमें पता चलता है कि हमने आपस में क्या बातचीत की। मैंने आपसे सवाल किया, आपने उस सवाल का जवाब दिया, उस सवाल के जवाब के अंदर फिर हमने एक दूसरे से बातचीत की और फिर हम समझ पाए कि मैं क्या बात करना चाहता हूं और आप क्या बात समझना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। और अगर एक शख्स सिर्फ अपनी ही बात सुनाकर चला जाए और दूसरे की बात ना सुने तो क्या बात मुकम्मल हुई? तो क्या हम अपनी बात दूसरों तक तो सुना दी, हमने क्या दूसरे की बात क्या सुनी? हम नहीं सुनते और फिर हम ये कहते हैं कि हमारी दुआ रुक गई। हमने खुदा से दुआ की, हमने मांगा, हमने कहा, वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन बुनियादी वजह क्या है कि हमें जिस तौर पर दुआ करनी चाहिए वो हमने इस तौर पर खुदावंद के हुजूर में दुआ ही नहीं की। जो राब्ता मुझे और आपको खुदा के साथ जिस तौर पर कायम करना चाहिए था, जिस तौर पर उसके साथ बातचीत करनी चाहिए थी, वो तो हमने की ही नहीं। अगर मैं ही अपनी बात सुनाकर चला जाऊं और दूसरे की बात ना सुनूं तो क्या उस बात का कोई फायदा है? हम अक्सर ऐसा ही दुआ करते हैं। हम खुदावंद के हुजूर में आते हैं और एक बड़ी तफसील के साथ सब कुछ बताकर चले जाते हैं। आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम दुआ को समझ सकें। आज हम दुआ को समझ सकें कि हमें दुआ करना कैसी है, हमें किस तौर पर खुदावंद के हुजूर में आना है और अपनी दुआओं मुनाजात को रखना है। सबसे पहली बात यह है कि हमें खुदा के साथ राब्ता कायम करना है। और राब्ता कैसे कायम होगा? जब हम उसके हुजूर में आएंगे, जब हम उससे बातचीत करेंगे। और हम अक्सर ये सवाल करते हैं और हम दूसरों से भी मदद मांगना ये चाहते हैं कि खुदावंद की आवाज को कैसे सुने, कैसे पता चलेगा कि यह खुदा की आवाज है। मसीह में मेरे अजीजों, वालिदैन को अपने बच्चों की आवाज का पता चलता है या नहीं? क्या भाई को अपनी बहन की, बहन को अपनी भाई की, माँ बाप को अपने बच्चों की, अजीजों की आवाज का पता चलता है या नहीं? या वो किसी से पूछते हैं कि ये किसकी आवाज है? किस वजह से उन्हें ये पता चलता है? क्योंकि उनका उनके साथ एक ताल्लुक है, एक करीबी ताल्लुक है। और अगर ये ताल्लुक ना हो तो क्या जब वो बात करें तो क्या वो उन्हें जान सकते हैं? कभी भी नहीं जान सकते। अगर आप दूसरे कमरे में बैठे हो और वो बोल रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि ये किसकी आवाज है। और ये किस वजह से है? क्योंकि आपका ताल्लुक उसके साथ है। और अगर ये ताल्लुक मजबूत ना हो, अगर ये मोहब्बत ना हो, तो फिर
آپ اس آواز کو نہیں سمجھ سکتے، اس آواز کو نہیں جان سکتے، اور اگر کبھی آواز کو بدل کر بھی بولا جائے تب بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے، یہ بدل کر بولی گئی ہے۔ کس وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، اور یہ رشتہ محبت کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اگر یہ محبت کا رشتہ اس طرح سے نہ بندھا ہو تو آپ اس آواز کو سن اور پہچان نہیں سکتے۔ اسی طور پر خدا کی آواز ہے، ہم تب تک خدا کی آواز کو نہیں سن سکتے، سمجھ سکتے، جان سکتے جب تک میرا اور آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط نہ ہو۔ چرواہا جب بھیڑ کو پکارتا ہے تو بھیڑ اس کی آواز کو سنتی ہے، سمجھتی ہے، کیونکہ وہ چرواہے کے ساتھ سارا دن گزارتی ہے اور اس کو اپنے مالک کی آواز کا پتہ ہے۔ اور آج ہمارے لیے یہ سوال ہوتا ہے کہ خداوند ہمیں کب پکارتا ہے، خدا ہمارے ساتھ کیسے بات کرتا ہے؟ وہ ہمیں اس لیے نہیں پتا کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ رشتہ نہیں، ہمارا دعا میں اس کے ساتھ رشتہ نہیں۔ اگر آج میرا اور آپ کا خدا کے ساتھ دعا میں رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو پھر جب ہم خدا کے ساتھ بات کریں گے تو ہمیں بات کی سمجھ لگے گی۔ جب ہم خدا کے ساتھ کلام کریں گے تو ہم اس کلام جو ہم نے خدا کے ساتھ کیا ہے اس کا جواب سننے کے لیے بیٹھیں گے بھی۔ ہم خاموش ہوں گے کہ میں نے جو کہا ہے میں اس دعا کا، اس بات کا جواب بھی سن سکوں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ بعض دفعہ ہماری دعائیں صرف ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں اس کے مطابق خدا یہ کہے۔ میں یہ الفاظ بڑے معذرت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے خدا کو اس طور پر سمجھ لیا ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو کہ ہم اسے یہ کہیں کہ یہ کر، وہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، سارا کام ختم کر کے تو واپس آ جا۔ یہ ہمارا انسانی رویہ ہے اپنے خدا قادر مطلق باپ کے لیے کہ ہم نے اسے ایسے سمجھ لیا ہے کہ خدا تو یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے۔ اگر نہ کیا تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا تو کہاں پہ ہے؟ اگر تو قادر مطلق ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو کیا تو میرے لیے یہ نہیں کر سکتا؟ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا خدا قادر مطلق باپ کو ہم نے اس طور پر رکھ لیا ہے کہ وہ کیا ہمارا ملازم ہے؟ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے خیالوں کو بدلنا ہے کہ ہمارا خدا قادر مطلق ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جو کہ ہمارا خالق ہے، جو کہ ہمارا مالک ہے، اور جس کی بنائی ہوئی ہم کاراگری ہے۔ ہم اس کو کیا درجہ دیتے ہیں؟ ہمیں اپنے خدا سے اس کی مرضی کو جاننا ہے کہ وہ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کس طور پر دعا کریں۔ جب ہماری دعائیں اس کی پاک مرضی کے مطابق ہوگی، جب ہم اس کی مرضی کو جان سکیں گے کہ ہمیں کس طور پر دعا کرنا ہے، تو پھر ہماری زندگی میں تسلی اور اطمینان ہوگا۔ ہم دعائیں جو ہیں اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق کریں گے، اور ہم خداوند سے یہ کہیں گے کہ جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعا کے اس تعلق کو جان سکیں، ہم خدا کے ساتھ اس رشتے کو جان سکیں۔ جب ہم دعا پر غور کرتے ہیں تو 5 باتیں ہیں جو کہ ہمیں دعائے ربانی میں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات کہ ہم خدا کی تعظیم کو جان پاتے ہیں، کہ ہم خدا کی تعظیم کرتے ہیں، ہم خدا کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، ہم خدا کی فرما برداری میں آ جاتے ہیں۔ تیسری بات کہ ہم خدا پر انحصار کرتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ خدا باپ کرنے والا ہے۔ چوتھی بات کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں
माफी की जरूरत है कि हम माफ किए जाएं, और खुदावंद ही है पांचवी बात कि जो हमें बुराई से बचाता है, और हम खुदावंद से मदद मांगते हैं। जब हम इन बातों के साथ खुदावंद के पास आते हैं, अपना तवक्कल खुदावंद पर रखते हैं, तो फिर हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ और गहरा और मजबूत होता चला जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी ही बताना चाहते हैं, तो फिर हम खुदा के साथ उस ताल्लुक में, उस रिश्ते में गहरे नहीं हो सकते। ताल्लुक तब ही गहरा होता है जब हम सुनते हैं, समझते हैं और बताते हैं। लेकिन अगर जहां पे सिर्फ कहना ही कहना हो और सुनना ना हो, तो ताल्लुक कभी कायम नहीं हो सकता, रिश्ता कभी गहरा नहीं हो सकता। और इसको हम अपने खानदानी ताल्लुक में देख सकते हैं। अगर हम सिर्फ ऑर्डर ही देने वाले हों और किसी बात पर अमल करने वाले ना हो, तो ताल्लुक कायम नहीं हो सकता। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई हमारे लिए अच्छा करे, तो हम उसकी बात को सुनते भी हैं और उसकी बात को अहमियत भी देते हैं और उसकी बात को मानते भी हैं। और अगर हम उसकी बात को ना माने, तो ताल्लुक कायम नहीं होता। जरूरत इस बात की है कि क्या आज हम खुदा की बात को मानते हैं या नहीं मानते, या आज सिर्फ हम वही चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूं, खुदावंद मेरी मर्जी के मुताबिक तू ये भी कर दे, वो भी कर दे। क्या हम खुदा की मर्जी चाहते हैं कि खुदा की मर्जी क्या इस काम में है या नहीं है? क्या खुदा ये चाहता है कि मैं करूं या ना करूं? लेकिन इंसान होते हुए हम ये चाहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है। रूहानी तौर पर अगर हम और जिस्मानी तौर पर बातों का जायजा लें, तो जिस्मानी माँ बाप जानते हैं कि हमारे बच्चे के लिए, हमारे बेटे या बेटी के लिए क्या बात सही है और क्या बात गलत है, क्या बात उसे नुकसान दे सकती है और क्या बात उसके लिए बढ़ोतरी का बाइस बन सकती है। तो हमारा आसमानी बाप क्यों ना हमारे लिए फिक्रमंद होगा कि मेरे बेटे और मेरी बेटी के लिए क्या बात अहम है और किस बात के लिए उसे बढ़ोतरी की जरूरत है और किस बात के लिए उसे रोकने की जरूरत है। लेकिन हम अपनी दुआओं का रुख जो है मुख्तलिफ तरह से खुदा उनके सुनने पेश करते हैं। मसीह में मेरे अजीजों, दुआ के हवाले से और बहुत सी बातें हैं जिनको हम बड़ी तफसील के साथ बयान कर सकते हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पर आज जब हम दुआ रुबानी पर आज हम गौर करते हैं, तो हम ये जानने की जरूरत है कि दुआ रुबानी के असल महनी क्या है। इनको हम बड़ा आसान तो समझते हैं, लेकिन ये जितनी बातें आसान है उतनी ही ये गहरी है। क्या हम गहरे तौर पर इन बातों को समझ पाए हैं? जब हम ये कहते हैं कि हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो इसका क्या मतलब है? जब हम ये कहते हैं ऐ हमारे बाप, और ये बाप कहने का जो खास इस्तकाक है वो हमें किस वजह से मिला है? वो हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मिला है कि हम उसको बाप कह सकते हैं, ताकि हमारा रिश्ता जो आसमान पर है वो हमें इस बात पर कि हमारा रिश्ता जो है वो खुदा के साथ है जो आसमान पर है, और जिसका मतलब ये है कि खुदा कादिर मुतलक है, जो आसमान इस बात की दलील देता है कि कादिर मुतलक है। और हमें इस बात को समझना है कि खुदा लामहदूद है। और जब हम ये कहते हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए, तो हमें उसके नाम को इज्जत और तकरीम देनी है। जब हम यहूदी माशरे में देखते हैं तो खुदावंद के नाम को इज्जत और तकरीम देते,
यहां तक कि जब उनने लिखना होता, जो कातिब थे और वो खुदा का नाम लिख नहीं सकते थे, उसको याहवे लिखते, और जिस कलम के साथ उसको लिखते उस कलम को वो तोड़ देते कि अब ये कलम दूसरा कुछ लिख नहीं सकती, क्योंकि इस कलम के साथ हमने जिंदा खुदावंद खुदा का याहवे का नाम लिखा है। तो क्या हम उसके नाम को उस कदूसियत के साथ, उस इज्जत और तकरीम के साथ लेते हैं? क्या हम उस नाम को अपनी जिंदगी में इस तौर पर इज्जत देते हैं कि उसके नाम को हम इस तौर पर पाक समझते हैं? और जब हम इस बात के लिए कहते हैं कि तेरी बादशाही आए, तो क्या हम इस बात को कहने का हक भी रखते हैं कि तेरी बादशाही आए? क्या हम इस बात को समझते हैं कि उसकी बादशाही आज मेरी और आपकी, हम सब की जिंदगी में है? क्या हमने उसको अपनी जिंदगी का बादशाह माना है? क्या हमने अपनी जिंदगी उसको दी है? क्या हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं? जब हम उसको बादशाह मानते हैं तो क्या हम बादशाह की बातों को भी अपनी जिंदगी में मानते हैं, या सिर्फ ज़बानी कलामी ये कहते हैं कि खुदावंद तेरी बादशाही आए? जब हम ये बात कहते हैं कि तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, तो क्या आज हमारी जिंदगी के मंसूबे, क्या हमारी जिंदगी उसकी मर्जी के मुताबिक है या नहीं? क्या आज हमारी तमाम ख्वाहिशात और हमारे तमाम मंसूबे खुदावन की मर्जी के मुताबिक है या हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक है? हमें ये जानने की जरूरत है। हम दुआ तो करते हैं, क्या आज हमारी जिंदगी की ख्वाहिशात, हमारे मंसूबे खुदावन की मर्जी के मुताबिक है या नहीं? जब हम ये कहते हैं कि हमारी रोज की रोटी आज में दे, तो हम खुदावन से इल्तिजा करते हैं, हम खुदावन से ये मांगते हैं कि खुदावन हमें हमारी रोज की रोटी दे, क्योंकि वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, जो कि हमें हर रोज की रोटी देता है। हमारी तमाम जिस्मानी जरूरतों को वो जानता है, और वो जानता है कि मेरे बेटे मेरे बेटी को किस बात की जरूरत है। वो हमें तमाम हमारी जरूरियात को पूरा करता है और उसे हमारी फिक्र है। और जब हम ये कहते हैं कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हम इस बात पर इंतजार करते हैं कि हमें माफी की जरूरत है। आज हमें कौन माफ कर सकता है? खुदावंद यीशु मसीह, जिसने हमें हमारे गुनाहों से रिहाई बख्शी है, जिसने हमें माफ किया है। हम उस माफी पर इंतजार करते हैं। आज हमें उसके वसीला से माफी मिली है। जब हम माफी को देखते हैं तो हम मुकद्दस लूका के मुताबिक लिखी गई इंजील में पढ़ते हैं कि जिस शख्स पर 1000 कोड़े आते थे और जिस पर बहुत सा कर्ज था, मालिक ने उसको माफ कर दिया, और उसी शख्स ने किसी से 100 तोड़े लेने थे, बहुत छोटा सा कर्ज, लेकिन उसने उसको माफ नहीं किया। क्या आज मेरी और आपकी जिंदगी में इस तौर पर है कि हम अपने लिए तो माफी मांगते हैं, लेकिन दूसरों को माफ नहीं करना चाहते? जब खुदा बाप ने हमें माफ किया है, तो क्या हम पर यह फर्ज नहीं कि हम भी दूसरों को माफ करें? और फिर हम ये कहते हैं, और हमें इस बारिश में ना बल्कि बुराई से बचा। और जरूरत इस बात की है कि हर वक्त हम अपनी हालत को जाने, पहचाने कि हमें खुदा के साथ वफादार रहने की जरूरत है। खुदावंद से हमें रहनुमाई लेने की जरूरत है। खुदावंद हमें हमेशा उठा खड़ा करता है। खुदावंद हमेशा हमें रूहानी तौर पर कुव्वत बख्शता है ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें। हमें रूहानी तौर पर कुव्वत की जरूरत है जो कि खुदावंद हमें बख्शता है। मसीह में मेरे अजीजों, आज हमें
इस बात को जानने की जरूरत है कि क्या मेरी और आपकी, हम सब की जिंदगी में दुआ इस तौर पर है कि हम खुदावंद के हुजूर में इस तौर पर आते हैं कि हम खुदावंद का शुक्र बजा लाएं। हम हमारी दुआएं, हमारी इल्तिजाएं, मुनाजात खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हो, ना कि हमारी मर्जी के मुताबिक। और इन सब बातों को जब खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया तो इन सब बातों को करने से पहले उसने तंबीह की। और वो तंबीह क्या थी, वो नसीहत क्या थी कि हमें दुआ किस तौर पर नहीं करनी। इस तौर पर कि गली के मोड़ों पर, कोनों पर, बाजारों में खड़े होकर। इससे मुराद खुदावंद यीशु मसीह की क्या है? कुछ लोग और उस वक्त में लोग क्या करते थे, और आज भी हमें अपने इर्द गिर्द ऐसा नजर आता है कि इस तौर पर पेश किया जाता है कि देखें हम कितने पाक पास हैं, देखें हम कितने खुदावंद के नजदीक हैं। हम खुदावंद को इस तौर पर जलाल नहीं देते, हम अपनी जिंदगी से खुदावंद को इस तौर पर जाहिर नहीं करते, हम अपनी जिंदगी में से खुदावंद की शान और शौकत को इस तौर पर जाहिर नहीं करते कि खुदावंद हमारी जिंदगी में से नजर आए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम नजर आए कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने रूहानी हैं। हमारी जिंदगी में खुदा किस तौर पर काम करता है, हम दिखावा करते हैं। खुदावंद ने इस दिखावे से मना किया है, खुदावंद ने इस दिखावे की मुखालफत की है कि हमें अपनी जिंदगी में ये दिखावा नहीं करना, हमारी जिंदगी में ये दिखावा नहीं होना चाहिए। हमारी जिंदगी में से खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए, ना कि हमारी जिंदगी में से हमारी शान और शौकत नजर आए। आज हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में से इस तौर पर शान और शौकत नजर आए कि हाँ लोग ये कहें, वाह ये कैसा खुदा का खादिम है, ये खुदा का कैसा बेटा या बेटी है जो कि इतनी खुदा उनके साथ वफादार है, ये खुदा उनके साथ कितने अच्छे अल्फाज पे दुआ करता है, कितने बड़े बड़े अल्फाज बोलता है। आज खुदावंद मेरी और आपकी ये रहनुमाई करता है कि हमें इस तौर पर दुआ नहीं करनी। हमारी जिंदगी में आज से इनकिसारी होनी है, हमारी जिंदगी में से खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद की हलीमी और खुदावंद की आजिज़ी और इनकिसारी इस तौर पर नजर आए कि हमारी जिंदगी में से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आज हम खुदा के नाम को जलाल देने के बजाय इंसान को जलाल देते हैं। आज हम खुदावंद के नाम की तारीफ करने की बजाय इंसानों की तारीफें करते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हमारी जिंदगी में इस तौर पर पाकीज़गी आए, इस तौर पर हलीमी और आजिज़ी आए कि खुदावंद यीशु मसीह की गवाही हमारी जिंदगी में से नजर आए। अगर आज मेरी और आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की गवाही नहीं, खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और खुदावंद यीशु मसीह का ताल्लुक नहीं, तो मेरे और आपके लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। लैंड के ये अयाम आज हम सबको इस तौर पर बुलाते हैं। आज हम इस बात की दावत देते हैं कि हमारी जिंदगी में दुआएं रबानी, खुदा ने जो हमें ये अजीम तोहफा दिया है, हम इस बात को समझ सके कि हमारी जिंदगी में दुआ की क्या अहमियत है, हमें किस तौर पर दुआ करनी है। खुदावंद ने हमें एक रहनुमाई इस दुआ में बख्शी है। खुदावंद यीशु मसीह ने वो तमाम बातें हमें इस दुआ में इस निचोड़ के साथ बता दी हैं। हमें इस बात पर गौर व ख्वास करना है कि क्या हम खुदावंद के साथ इस तौर पर इस ताल्लुक में कायम रहते हुए दुआ कर रहे हैं या नहीं। आज हम किस तौर पर खुदावंद के साथ दुआ में आते हैं। जब हम उसको बाप कहते हैं, तो आज हम जब उसको बाप कहते हैं तो हमारा ताल्लुक बहुत करीब हो जाता है, क्योंकि बाप अपने बच्चों की फिक्र करता है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं, हम इस बात पर तवक्कल करते हैं, हमारा यकीन और भरोसा बाप पर है कि वो सब कुछ करने पर काबिल है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम इस बात को जानें और समझें
कि हमें दुआ किस तौर पर करना है। आज खुदावंद हमें ये तौफीक बख्शे, आज हमें खुदावंद रूहानी तौर पर ये कुव्वत और समझ बख्शे। खुदावंद पाक रूह हमारी मदद करे, हमारे ज़हनों को खोले, हमारे ज़हन में से वो तमाम ऐसे बादल जो इब्लीस ने बनाए हुए हैं वो आज खत्म हो जाए और हमारी जिंदगी में वो आजिज़ी और किसाली और खुद इनकारी आ जाए कि आज हम अपनी जिंदगी का रूहानी तौर पर तज्जिया कर सके कि आज हमें किस तौर पर दुआ करने की जरूरत है। आए हम खामोशी में अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें और खुदावंद से मांगे कि अगर खुदावंद मेरी जिंदगी में इस तौर पर कमी रही है कि जिस तौर पर मुझे दुआ करना चाहिए था वो मैंने नहीं की, तो खुदावंद तू आज मुझे सिखा। तेरा पाक रूह मेरी रहनुमाई करे, मेरे तमाम ऐसे बंधन आज वो टूटे, मेरी जिंदगी को तमाम ऐसे जुए आज टूटे जिन्होंने मुझे जकड़ा हुआ है, जिन्होंने मुझे इस तौर पर जकड़ा है कि मैं सही तौर पर दुआ ना कर सकूं, मैं तेरे साथ उस रास्ते में ना आ सकूं। खुदावंद तू मेरे कानों को खोल, तू मेरी सोचों को खोल दे ताकि आज रूहानी तौर पर मैं तेरी आवाज को सुन सकूं, पहचान सकूं। और अगर आज मैं रूहानी तौर पर तेरे साथ उस ताल्लुक में कमजोर हूं तो आज मेरे उस ताल्लुक को तू बहाल कर दे। आज तू मेरे उस रूहानी ताल्लुक को वो पायदारी बख्श दे ताकि मैं उस रूहानी ताल्लुक में इस तौर पर कायम हो जाऊं कि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं, पहचान सकूं। ए खुदा बाप, हम तो शुक्र बजा लाते हैं कि तूने अपने बेटे को भेजा ताकि हम उसके वसीला से जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। ए खुदा बाप, हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम कमजोर हैं। ए बाप, हम तेरे हुजूर में आते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू हमें दुआ करना सिखा। ए खुदावंद, जबकि तूने हमें दुआ का पूरा एक नमूना बख्शा है, ए खुदावंद तूने हमें इस तौर पर दुआ करना सिखाई है, तो खुदावंद तो हमारी रहनुमाई कर कि हमारी जिंदगियों में से तेरे नाम को जलाल मिले, ना कि हम अपनी जिंदगियों में से अपनी जिंदगी को जलाल दें, हम अपनी तारीफ चाहें, अपनी शान और शौकत चाहें, बल्कि हमारी जिंदगी की तमाम तर ए खुदावंद ऐसी बातें जो कि तुझसे दूर हैं वो आज तेरे कदमों में हम लेके आते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हम पर अपना रहम फरमा और खुदावंद हमें दुआ में और ज्यादा आगे बढ़ाता चला जा, हमें इस रूहानी ताल्लुक में आगे बढ़ाता चला जा और हम गजे और तू बढ़े और तेरा नाम हमारी जिंदगी में जलाल बने, उसी यीशु के नाम में आमीन। सी और हाय अता फरमाई। खुदा पाक, खुदा बख्श ज़ेब के लिए, पूरे खानदान के लिए दुआ करो कि अपनी खास बना रख, और जो बड़ी मुसीबत आई उससे खुदा तू चाहे तो निजात दे सकता है। खुदा पाक, खुदा जब तेरे कदमों की इज्जत करते ईमान कर भरोसा तुझ पर है तो यीशु जी रहम कर दे। और खुदा पाक, खुदा तेरे हुजूर खास दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए भी जो खुदा साथ चलते उनको बड़ी बरकत अता फरमा। और यीशु जितने लोग इस वक्त इस पाक और फाकत में शामिल हुए उन सबको बड़ी बरकत दे, क्योंकि खुदा पाक, खुदा तो जिस्मानी खुराक के साथ रूहानी खुराक भी खिलाते, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा इस पाक और फाकत में कायम रहने का फजल दे, मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। जमात खड़ी हो जाए कलमाते बरकत के लिए। दुआ का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और काबिल मुतलक खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा उसकी बरकत आपके साथ
आपके खानदानों के साथ, कलीसिया पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा होती रहे। आमीन।